एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस वाली वर्कशीट में इट्स राइट, राइट एट द एंड, पेज 39। सही कौन सी वर्कशीट है? ये जो मैंने ग्रुप पे भेजी थी, इस वाले ग्रुप पे। ये वैसे ये सिलेक्टेड क्वेश्चन, दीज आर लाइक स्लाइटली इजियर मोड्स क्वेश्चंस, ठीक है, जस्ट फॉर एन इंट्रोडक्शन। तो इसमें ना देयर इज एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। हाउ डू यू फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला इफ यू वांट टू फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एनी कंपाउंड? देयर टू स्टेप्स के। क्वेश्चन 58 से स्टार्ट कर लेते हैं। So the step is that you've got is question where you've got potassium and you've got iron or carbon and nitrogen, ठीक है। And the masses are given for each one of them. This is 0.547 grams. This is कितनी अगली 0.195 grams. अच्छा, this one carbon is what, 0.252 grams, and nitrogen is what, 0.294 grams. दो steps होते हैं empirical formula के लिए. One is, the first step is you find the moles. So step number one is divide by AR. So AR जो है potassium की, that's 39. So you divide by 39. The other one is 56. ठीक है। Carbon जो होता है, that's 12. Divide by 12. Nitrogen is going to be 14. ठीक है। तो step one, moles निकालो, ठीक है। You find the moles. That's step number one. तो ये values बताओ, what are these values that you're getting in this case? क्या क्या आ रहा है? What is point mass divided by the atomic mass? 0.547 divided by 39. What do you get? जीरो पॉइंट जीरो वन फोर जीरो। और अगला क्या? 0.19 divided by 56. इसमें क्या लिखा हुआ है? 0.19। 5 divided by 56. uh, 3.482 times 10 to power minus 3। No, 0.00348, right? 0.252 divided by 12. That's 0.021. ये 0.021, and lastly 0.294 divided by 14. सर ये आयरन का 0.0348 कैसे है? तुमने नहीं बताया था 0.195 divided by 56 क्या आ रहा है? सर मेरा टाइम्स 10 टू पावर समथिंग है। हाँ, तो उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया ना। राइट सर। 0.195 divided by क्या है? That's 56, right? हाँ, 0.00348 ना। अच्छा, अगला लास्ट वन, 0.294 divided by 14. What do you get? That's also 0.021. ठीक है, 0.021. अच्छा, step number two is you find, step number two is you find whole number ratio. But you found the ratio of the moles. Now you have to find the it in whole numbers. तो उसके लिए you divide by the smallest, ठीक है? So you divide by the smallest. Smallest इसमें कौन सा है? That's 0.014. Divide everything by 0.014. नहीं, 0.0348 is the smallest. Which one is the smallest? नहीं, 14 is the smallest. So what do you get? Either one. What's the next one? 21 divided by 14 वो क्या होता है? 2.4 It is 2.48। 2.48. 2.48? यस सर। 0.0, इसमें दो जीरोस नहीं थे? एक संग दो जीरोस थे ना? हाँ, ये मेरे ख्याल से गलत है। इट्स, इज इट 0.0348 और इज इट
एक सेकेंड, 0.195 डिवाइडेड बाय 56। हाँ, वो 0.00348 है। तुमने वो सारा ही गलत कर दिया। एक सेकेंड रुको। This actually is 0.00348. So the smallest is actually this one. You have to divide everything by 0.00348. अब बताओ फर्स्ट वाला क्या होगा? 4.02. ठीक है, 4 हो गया। What's the next one is 1, right? Yes. उससे नेक्स्ट क्या है? 6. And उससे अगला भी 6 होगा. So the formula is going to be what? K4. You got the whole number ratio. K4 Fe1 C6 or N6. Is that clear? So it's going to be C6 and N6. ठीक है, clear है? तो ये दो स्टेप्स हैं. स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2. Divide by the AR or you find moles. Once you have moles, you have to find the simplest ratio. Simplest ratio कोई भी होता है ना, like 2:6, right? You have to find the simplest ratio. तो divide by the smallest होता है. Pick the smallest, divide both of them by the smallest, so it's going to become what? 1 ratio. It's going to become 1:3. ठीक है. तो ये ऊपर वाला करोगे इसका empirical formula. Saying and question 56. Book है red ants. They show that it contains carbon, hydrogen, and oxygen, right? So carbon कितना? That's 0.06 grams. Hydrogen is what? 0.01 grams, and oxygen is 0.16 grams. So divide by the smallest, so that's 12. This is 1, and this one is 16. Five times 10 to power minus 3. कितना है? ये पहला 5 times 10 per minus 3, right? Yes, Second, sir. that's 0.01. और लास्ट वाला क्या होगा? That's going to be what? 0.01. 0.01 ही होगा ना? ये चेक करके बता दो. 1 times 10 to power minus 3. -3 है. 1 multiplied by 10 to power minus 3. तो दो zeros. तो 0.001. अच्छा, ये फर्स्ट वाला जो है that's 0.00. Honey, right, sir. क्या? 0.0. Oxygen का 0.01 ठीक है. और ये नहीं कंफर्म 0.01 है, 0.001 है? है. 0.01. 0.01, right? Yes, sir. अच्छा, डिवाइड बाय द स्मॉलेस्ट. तो सारों को उठा के डिवाइड एवरीवन बाय 0.005. सो दिस विल बिकम आई थिंक इट विल बिकम 1, दिस विल बिकम 2, एंड दिस विल बिकम 2 as well. Is that clear? Yes, sir. तो वो आ गया आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला. ठीक है. तो सारों का एम्पिरिकल फॉर्मूला इसी तरह निकालना है. समटाइम्स दे विल गिव यू परसेंटेज मास. ठीक है. सो सो इधर भी दिया हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन एंड oxygen. If percentage mass is given, you're going to do exactly the same. You're going to take it as mass. Okay, you got 52.2 grams, 13 grams of this, and 34.8 grams of this. कि अगर 100 grams होता ना, this is the mass that you're going to get. Divide by the air, divide by 12, divide by 1, divide by 16. क्या आ रहा है तीनों के? What are the moles that you're getting?
4.35. अच्छा, this is 4.35, वो कितना होगा 13, and this is last क्या? So that's 2.17. 2.175. 5. अच्छा, divide by the smallest, divide everyone by 2.175. So this would be 2, this would be, क्या आ रहा है 6? Can you just confirm this? And the last one would be 1. Is this यही है? सर सेकंड का 5.25 आ रहा है. फर्स्ट का यही आ रहा है. वन सेकंड सर. देखें ना, मेरे ख्याल 5.25 नहीं होगा 13 divided by 2. Second one is 5.977, sir. So that's around 6, right? यस सर. तो ठीक है, तो वो राउंड कर लो. इट्स गोना बी C286 and O1, राइट? क्लियर है? यस सर. Yes. अच्छा, बाकी so अच्छा, this one. So this one is an interesting question. I'm pretty sure the question would be very simple. तो कहानी ज्यादा लिखी हुई है. Small piece of copper were added to excess concentrated sulfuric acid. The mixture heated for 30 minutes. So copper added to sulfuric acid. अब वो कह रहा है कि a colorless gas Z is formed. Uh, when Z was tested with filter paper dipped into potassium dichromate 6, there was a color change from orange to green. ये वैसे, do you know what gas this is? ये test of ions का, like if I open the test of ions, there's a gas which is sulfur dioxide. वो सारे revise भी कर लेते हैं एक second. अच्छा, so this one is एक ATP का पेपर खोल लेते हैं. 6.2. अच्छा, test of ions which are all written over here. ठीक है, तो इसमें you've got the test of anions, right? And you've got test of cations and the test for gases. ठीक है, so there's one gas, sulfur dioxide, जो react करती है एक it's a reducing agent. It reacts with an oxidizing agent like potassium magnate 7 and it changes color from purple to colorless. There are two oxidizing agents. One is potassium magnate 7 and the other one is potassium dichromate 6. एक ऑरेंज टू ग्रीन होता है और एक पर्पल टू कलरलेस होता है. ये अलग से आपने याद रखना है कि देर आर टू ऑक्साइजिंग एजेंट्स. वन इज पोटेशियम मैग्नेट 7 एंड द अदर वन इज dichromate 6. तो खैर, anyways, he's talking about sulfur dioxide gas that is getting produced in the reaction over here. तो वो कह there was a color change and it changes तो वो, so this gas Z over here is definitely sulfur dioxide, and it makes sense. वो sulfuric acid से बन रहा है, so probably that's correct. So then he says the reaction mixture was cooled and then diluted with water. The blue solution Y was formed. Sodium hydroxide was added drop by drop to the blue solution. Eventually, a blue precipitate was formed. On heating the blue precipitate, it turned. तो उसने कहा it. अच्छा, ये blue precipitate क्या होगा? This is again ये test of copper ions है. Copper ions जो है ना, if you add NaOH to it, ठीक है, तो copper ions क्या होते हैं? They turn and they form a light blue precipitate. तो खैर, उस पूरी कहानी का ना इस क्वेश्चन से कोई काम नहीं है वैसे. अच्छा, सो उसने कहा on heating the blue precipitate it turned black to form compound V, और compound V का ना उसने he's given you the analysis. So the whole story was kind of irrelevant. ठीक है, it had nothing to do with the question. The question is simply you find what is the empirical formula of this. तो उसमें copper है, oxygen है, and the percentage mass is given. So this is 79.9%, and oxygen is what, 20.1%. Copper I think is 63.5 AR. So divide by the AR, this is 16 divided by the AR. So how many moles do you get इस केस में?
1.25. और दूसरा क्या है 1.25? दैट इज ऑल्सो 1.25, राइट? Yes, sir. It's 1.256. तो बस 1:1 हो गया, ठीक है. If you divide by the smallest, it's going to be. So the empirical formula would be copper 1 and oxygen 1, CuO. ठीक है, clear? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब empirical formula से ना molecular formula. The thing is that empirical formula tells you the simplest ratio. Okay, for example, you've got glucose, right? So the empirical formula is the simplest ratio. इसका जो simplest ratio है, that's going to be C1H2 and O1. ठीक है. So that is the simplest ratio. तो आप ये जो काम कर रहे हो ना, इससे what you get is you get the empirical formula. You don't get the actual formula. You get the empirical formula, ठीक है. EF लिख देते हैं, empirical formula. How do you go from here to the molecular formula? ठीक है. तो molecular formula के लिए ना, one thing that's very important is you need to know what the MR is. For example, they're going to tell you that the MR of the molecule is 180. Now, you only found the empirical formula in this case. ठीक है, आपको सिर्फ empirical formula मिला है. And you have to somehow find the molecular formula. तो अच्छा, you have to somehow find the molecular formula. तो what you're going to do is कि आप empirical formula लोगे और देखोगे कि what is the total mass or the formula mass of the empirical formula. That's going to be one carbon, that's 12, plus there are two hydrogens, plus there is an oxygen, that's 16. ठीक है. तो कितना हो गया? That's 30, right? So your empirical formula has a mass of 30, while your molecular formula has a mass of 180. इसका मतलब है डिफरेंस कितने का है? That's 6 times का डिफरेंस है ना. So that means in the actual formula, the number of atoms are going to be 6 times more. It's going to be the same ratio, लेकिन the total number of atoms are going to be 6 times greater. Is that clear? Yes, but sir, what if MR given now? नहीं, फिर तो नहीं हम निकाल सकते ना. You can't figure this out. But sir, कुछ क्वेश्चंस थे पास पेपर्स में जो मुझे मिले जिसमें एम उसका मैच नहीं दिया मॉलिक्यूलर उसका. नहीं, फिर तो you can only find the empirical formula in that case. ठीक है. तो या मतलब वो क्वेश्चंस रॉन्ग ही थे. नहीं, क्वेश्चन भेजो, मुझे पता ही नहीं है क्वेश्चन क्या है. सर व्हाट्सएप पे भेजें. अभी जो भेजा है, जी. एक से मैं देख लेता हूँ. ये पूरा मुझे बता सकते हो कौन सा पेपर है, कौन सा क्वेश्चन है? जी सर. आई कैन ट्राई. कि ऐसे में ना, ये क्वेश्चन का पार्ट है विच इज पेपर नंबर. देखो इसका कौन सा लिखा हुआ है. इस क्वेश्चन को देख लेते हैं. लिखा हुआ है उसमें पेपर नंबर. ये सर मैं भेज रहा नहीं, वो व्हाट्सअप कर. हूँ. जी सर. कहाँ किया? अच्छा. सर मई जून 2018 P21. नहीं, ये तुम मिथाइल प्रोपेन वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो. ये सर. अच्छा, नहीं वो इजी था. वो उसका जो मैं वो कर देता हूँ. उसको सॉल्व कर लेते हैं. उसका इससे लिंक नहीं है. जस्ट वन सेकेंड. इसमें अच्छा, सो दिस वन, ये मैं वैसे यहाँ पे कर रहा हूँ. वो मिथाइल प्रोपेन का क्वेश्चन है, C4H10. ये तुम्हें समझ नहीं, ये मैंने एक्सप्लेन किया था वैसे. C4H10, राइट? उससे क्या, अल्ट्रावायलेट लाइट या ऑर्गेनिक है. अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर क्लोरीन जब ऐड करते हो, व्हाट हैपेंस? उसका जो H है ना, दैट गेट्स नॉक्ड आउट. ठीक है. एंड इट गेट्स सब्स्टिट्यूटेड बाय Cl. इज दैट क्लियर? राइट सर.
ये सही है, याद आ गया, वो आपने समझाया था बस। हाँ, ये तो मैंने असल में बताया था। मुझे कुछ क्वेश्चंस आए थे जिसमें मैथ्स नहीं गिवन था, जो कि वो काफी कंफ्यूज। पिछला पिछला वाला ना, पिछला वाला बताओ ना कौन सा था जो भी इससे पहले भेजा था। सर एक मिनट में ढूंढता हूँ। तो इधर ये क्वेश्चन कर लेते हैं वो। ये पेपर, ये क्वेश्चन का ना पूरा वो देख लेना कि क्या है। बाकी इधर पहले कर लेते हैं, वो मैं एंड में दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा अच्छा, वो कह रहे ब्यूटेरिक एसिड कैन बी कन्वर्टेड, दिस वन इज एन एम्पिरिकल फार्मूला क्वेश्चन। वो कह रहे कि फर्स्ट फाइंड, और फिर यू हैव टू फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसने कहा बोथ द एम्पिरिकल एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो पहले तो क्विकली इसमें फाइंड आउट करो कि व्हाट्स द एम्पिरिकल फार्मूला। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट। तो कार्बन क्या है, दैट्स 0.18 grams, राइट। हाइड्रोजन इज 0.03 grams, राइट। और ऑक्सीजन इज 0.08 grams, राइट। ठीक है। तो डिवाइड बाय 12, डिवाइड बाय 1, डिवाइड बाय 16। अच्छा, खुद ही ट्राई एंड कैलकुलेट व्हाट द एम्पिरिकल फार्मूला इज, व्हाट डू यू गेट। मरीम क्या आ रहा है, वसी। ये सर इसका क्या आ रहा है। 0.015। अच्छा, 0.015, और अगला क्या आ रहा है, दैट्स ऑल्सो दैट्स 0.03। उससे अगला 0.08 डिवाइड बाय 16 क्या होगा। 5 टाइम्स 10⁻³ सर इसे कन्वर्ट कैसे करते हैं? एक से 5.005। नहीं, वो तो ये है ना, 5 × 10⁻³ है ना, उसका मतलब है कि 5 होता है ना, डेसिमल इधर होता है ना। ये सर। तो उसका मतलब है कि 10⁻³ का मतलब डेसिमल एक पोजीशन, दो पोजीशन, तीन पोजीशन आगे आएगा। ठीक है, एक जीरो आएगा, दूसरा जीरो आएगा, और फिर डेसिमल आएगा। इज दैट क्लियर। ये सर। या दिमाग में ये बिठा लो ना कि 10⁻1 है, तो वो पीछे लेके जाते रहो ना। 0.1 होगा तो 10⁻1 है ना, 10⁻2 होगा तो एक और जीरो होगा, 10⁻3 होगा तो और पीछे चला जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, एनीवेज, तो फाइंड द वो उसका होल नंबर रेशियो डिवाइड बाय द स्मॉलेस्ट, सो इट्स गोइंग टू बी व्हाट 3 रेशियो। क्या होगा इफ यू डिवाइड दिस वुड बी 6 This एंड is दिस वुड बी 1। 361. 361 है। Yes, sir. अच्छा, सो यू गेटिंग C3H6 1 if you divide by the smallest. अच्छा, find the C3H6O1, right? So what is this is the empirical formula. This is the simplest ratio. इसको total करो तो क्या होगा? That's going to be 12 times 3. That's 36. Plus उसमें एक oxygen add करो 16. Plus there is 6 H's. तो कितना बन रहा है? That's coming out to be 58. He's saying कि जो molecular formula है, that's 116. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि the number of atoms double होंगे ना. 116 is the double of 58, right? Is that clear? ये सर। तो जो एक्चुअल फॉर्मूला होगा उस पर नंबर ऑफ एटम्स डबल होंगे, द रेशियो वुड बी द सेम, सो इट्स गोइंग टू बी C6। 6 को भी डबल कर लो, दैट्स गोइंग टू बिकम 12, एंड O वुड बी O2 होंगे। ठीक है, क्लियर है। सर परसेंटेज शीट के क्वेश्चंस हो सकते हैं अभी? हाँ, वो तो हम कर भी रहे थे, लास्ट टाइम हमने वही डिस्कस किया था ना। तो उस पे आ जाते हैं। कहाँ पे गए परसेंटेज यील्ड, दैट्स 32। अच्छा, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि दो चीज़ें होती हैं, वन इज दैट, हाँ, वन इज द एक्चुअल अमाउंट, ये वाला कर लेते हैं। नहीं, किधर है, आई मीन लेट्स डू दिस वन, ये वाला।
अच्छा, वन इज द एक्चुअल अमाउंट, ठीक है, वो हमने कल डिस्कस किया था ना, यील्ड इज व्हाट दैट, एक वो है जो कैलकुलेटर वैल्यू दे रहा है, दैट्स द थ्योरेटिकल यील्ड, और दैट्स नोन एज द मैक्सिमम यील्ड। और एक होता है जो असल में होता है, ठीक है, आई टोल्ड यू कि इन रियलिटी यू डोंट गेट दैट वैल्यू, ठीक है। तो इधर वो कह रहे हैं 18 kg ऑफ ग्लूकोज इज बीइंग यूज्ड, ठीक है। तो रिमेंबर, पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 18 kg मीन्स 18,000 ग्राम्स, राइट। इसके मोल्स निकालो, मोल्स क्यों होंगे, मास डिवाइड बाय मोलर मास, सो डिवाइड बाय द एमआर विच इज 180, तो कितने मोल्स बन रहे हैं, 10, इज दैट क्लियर? ये क्लियर, 10 मोल्स आ रहे हैं, ये कोई सर 100 नहीं आएंगे? 100 आ रहे हैं, 180 डिवाइड बाय, नहीं सर, मतलब 18 केजी तो 18,000 हाँ ग्राम्स। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, 100 मोल्स आ रहे हैं, ठीक है। सो यू आर गेटिंग 18,000 डिवाइड बाय 180, सो यू आर गेटिंग 100 मोल्स। सो दिस इज सर 100। 180 से क्यों डिवाइड किया? हाँ, 180 180 उसकी से। एमआर है ना। राइट। अब बताओ कि एथेनॉल कितना होगा, डबल होगा, 1:2 है ना, सो दिस वुड बी 200 मोल्स, राइट। इज दैट क्लियर? सर ये डबल कैसे? 1:2 है ना इक्वेशन में, राइट सर। 100 डिवाइड बाय 1 टाइम्स 2, राइट, 200 मोल्स, ठीक है। तो इसकी मास निकालो, ये अब थ्योरेटिकल मास आ रही है, ठीक है। रिमेंबर, दिस इज द मैक्सिमम यील्ड जो कैलकुलेटर दे रहा है, ठीक है। सो द मास कम्स आउट टू बी मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एमआर, so it's going to be what, 200 multiplied by the mr, which is, इसकी जो mr है ना, that's 46, ठीक है। तो what do you get? क्या वैल्यू आई? 9200। 92, तो that's 9.2 kg, kg में 9.2 kg होगा, ठीक है। अच्छा, एनीवे, सो ये थ्योरेटिकल आ रही है, ठीक है। कैलकुलेटर पे जो भी वैल्यू होती है ना, दैट्स आइदर कॉल्ड द मैक्सिमम यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है। सो दैट्स योर थ्योरेटिकल। वो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इट्स गोइंग टू बी 0.92 kg, इज गेटिंग 0.92 kg, दैट्स द एक्चुअल, कि उसने असल में जाके ना, ही डिड द एक्सपेरिमेंट and he found out he's only getting 0.92, जबकि we calculated that should be 9.2, ठीक है। तो जो परसेंट yield का होता है, the formula is what, it's the actual over the theoretical or the calculated value times 100, ठीक है। the actual is what, 0.92, the one we figured out, calculator says it should be 9.2 times 100, that comes out to be 10%, यानी इसका मतलब है you're only getting 10% of what you thought you were going to get, is that clear? यस सर। ठीक है। तो बस यील्ड में ये बस एंड में फॉर्मूला याद रखना है कि द रेस्ट ऑफ द मोल्स क्वेश्चन इज एग्जैक्टली द सेम। तो यील्ड में ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज दैट दे विल गिव यू द एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। द एक्चुअल वैल्यू इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द थ्योरेटिकल वैल्यू, कभी कभार सेम भी हो सकती है, ठीक है। सेम अगर होगी तो दैट्स गोइंग टू बी 100% यील्ड, ठीक है। राइट क्लियर है? सर। यस सर। तो चले, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं फिर, ठीक है। ओके सर, 10 o'clock वाली क्लास होगी? हाँ, ओके सर। चले, ओके, ठीक है। टेक केयर ऑफ।